Now I can imagine that little home was really broken up. The breadwinner gone, sadness. Oh, it's wonderful when you got a sad home or a sad heart, and then Jesus appears all at once, isn't it? अब मैं कल्पना कर सकता हूँ कि छोटा सा घर पूरी तरह से टूटा हुआ है, वह कमाने वाला चला गया है, दुख की बात है। ओह, यह अनोखा है जब आप एक दुखी घर में जाते हैं और दुखी हृदय होता है और तब यीशु वहां पर आता है। क्या ऐसा नहीं है? I can imagine seeing Martha, a beautiful little woman with a black veil over her face, and little Mary, and them holding one another, saying, "What will we do? Papa and Mama's gone, and our precious brother." मैं मार्था को देखकर कल्पना कर सकता हूँ, एक सुंदर छोटी महिला, चेहरे पर काले पर्दे को डाले हुए, वह छोटी मरियम, और वे एक दूसरे को पकड़े हुए कह रही थी, हम क्या करें, हमारे माता पिता गुजर गए हैं और हमारा बहुमूल्य भाई। Now we have left the church and we're excommunicated from them and come out to follow Jesus of Nazareth, and He's pulled away and left us somewhere. और हम कलीसिया से निकल गए हैं और हम उससे तिरस्कृत किए गए हैं और बाहर निकल आए हैं ताकि नाज़रीन के यीशु के पीछे चलें, और वह दूर चला गया है और वो कहीं तो दूर चला गया है और हमें इस तरह से छोड़ दिया है। I can hear a critic come by and say, "Hey, where's that divine healer, that prophet of Galilee? Where's he at now? See, when it really comes the time for him to do something, he's gone. There it is." मैं निंदा करने वाले को वहां पर आकर और कहते हुए सुनता हूँ, वो दिव्य चंगाई देने वाला कहाँ है जो गलीली का नबी है? देखो, जब सचमुच में उसके कुछ करने का समय आया, वह चला गया है। यहाँ है वो। See, God just loves to do that, just to let people show what they are, just trying them to see what they really are. He gives them a blessing. He appears, shows Himself, introduces Himself to the people, just to see what kind of a reaction they'll take, just to see what they'll do about it. देखो, परमेश्वर को ऐसा करना पसंद है, केवल उन लोगों के लिए। वे लोग बस दिखाएं कि वे क्या हैं। जी हाँ, केवल उन्हें परखने के लिए, ताकि वे दिखा सके कि वे सचमुच में क्या हैं। वह उन्हें आशीष को देता है। वह दृश्य पर आकर अपने आप को दिखाता है, अपने आप को लोगों के लिए परिचय कराता है, केवल यह दिखाने के लिए लोगों की किस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी, केवल यह देखने के लिए कि वे इसके बारे में क्या करेंगे। Now, we find then after a few days, 4 days, poor Lazarus was dead, they buried him. Second day, third day, fourth day. Now anyone knows corruption sets in after 3 days. The nose falls in on the face first. अब हम पाते हैं कुछ एक दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद, बेचारा लाजरस मरा हुआ था, उन्होंने उसे गाड़ दिया था। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, अब हर एक जन जानता है 3 दिनों के बाद वहां पर सड़ावट आने लगती है। पहले तो नाक चेहरे से धस गई थी। And then corruption sets in. The skin worms begins to eat the body. They laid him in the ground, put a big rock over the top of the cave where they had him. And every once in a while the young girls would go out and kneel down at the grave and cry. और तब सड़ावट आ गई। खाल के कीड़े उसके शरीर को खाना आरंभ करते हैं। उन्होंने उसे जमीन पर लेटा दिया था। उस खो के ऊपर एक बड़ी चट्टान को रख दिया, जहां पर उन्होंने उसे रखा था। हर एक जन थोड़ी देर के बाद वे जवान लड़कियां वहां कब्र के पास घुटने में जाकर और रोने लगती है। After a while, the news got around. Jesus has come. We've seen Him moving into the city. Oh, that little Martha that had been so seemingly so dilatory about it, she proved then what she was made out of. Here she comes. She's coming on her road then, run out seeking. और थोड़ी देर के बाद खबर यहाँ वहां फैलने लगती है, यीशु आ गया है। हमने उसे शहर के अंदर आते हुए देखा है। ओह, वह छोटी मार्था, वो ऐसा दिखाई दे रहा था, वो उसके बारे में विलम्ब से समझती थी। तब उसने साबित किया था वो किस प्रकार की है। यहाँ पर वो आती है, तब वो अपने रास्ते पर निकल पड़ती है, दौड़ते हुए उसे ढूंढने लगती है। I can hear some of them along the road say, "Well, I guess you're satisfied now that your religion was false." She just ignored them and went on. Passed right on by all the critics. She went down till she seen him, maybe sitting down at the street corner. मैं उनमें से
कुछ लोगों को रास्ते में उसी दौरान आते हुए और ये कहते हुए सुन सकता हूं, तो ठीक है, मैं सोचता हूं, क्या तुम अब भी संतुष्ट हो कि तुम्हारा धर्म झूठा था? उसने उनको अनसुना करके वो आगे बढ़ गई और वह निंदकों को छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगी। वह नीचे चली गई जब तक उसने उसे देख नहीं लिया। हो सकता है वह सड़क के किनारे नीचे बैठा हुआ हो। Now it's seemingly she might have had a right to upbraid him and speak evil to him. Why she didn't run up and say, looky here, you're supposed to be a prophet, a man of God. अब ये ऐसा दिखाई देता है, वह जरूर हो सकता है उसके पास उसे फटकारने का अधिकार था और उसे भला बुरा कहने का अधिकार था। क्यों उसने दौड़कर और यह नहीं कहा, यहाँ देखो तुम्हें तो एक नबी होना चाहिए था, एक परमेश्वर का मनुष्य। Why didn't you come when we called you? Why, we're the laughing stock of the town now. We come out of our church to follow you. Seemed like she had a right. But you know, just like I preached on the lamb and dove, if we're a lamb forfeits every right he's got. तुम क्यों नहीं आए जब हमने तुम्हें बुलाया था? क्यों? हम अब नगर के लिए हंसी का पात्र बन गए हैं। हम अपनी कलीसिया से बाहर निकल आए हैं ताकि तुम्हारा अनुकरण करें। ऐसा दिखाई दिया कि जैसे उसके पास एक अधिकार है, लेकिन आप जानते हैं, जैसे मैंने एक बार प्रचार किया था, वो मेमना और पिंडुक, यदि हम एक मेमना है तो वही उत्पन्न करता है जो भी उसके पास है। That's exactly right. You ain't got nothing but wool, so he has to forfeit that. And you forfeit every right that you've got to serve God. That's exactly right. यह बिल्कुल सही बात है। उसके पास और कुछ भी नहीं है, केवल ऊन को छोड़कर, तो उसे वही उत्पन्न करना है और आप हर एक नीति को उत्पन्न करोगे जो आपके पास परमेश्वर की सेवा करने के लिए है। यह बिल्कुल सही बात है। I was getting after the women about the way they're wearing these little old clothes, and they said, well, we're Americans, we can do what we want to. I said, that's exactly right. But if you're a lamb, you'll forfeit your rights. Smoking cigarettes and carrying on like that, that's the worst thing a woman ever done. It's exactly right. मैं स्त्रियों को देख रहा था उस बात को लेकर, जिस तरह से वे उन पुराने छोटे कपड़ों को पहने हुए होती हैं, आप जानते हैं, और उन्होंने कहा, तो ठीक है, हम अमेरिकन हैं, हम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। मैंने कहा, यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन यदि आप एक मेमना है तो अपनी नीति को उत्पन्न करेंगे। सिगरेट को पीना और इस तरह से करना, स्त्रियों को हमेशा ही इस तरह से करना, यह सबसे खराब बात है। यह बिल्कुल सही है। A lady said to me not long ago, talking, she said, but Brother Branham, they don't make no other kind of clothes. I said, but they still make sewing machines and sell goods. There's no excuse for it at all. Exactly right. ज्यादा समय नहीं हुआ, एक महिला ने मुझसे कहा, वो मुझसे बात कर रही थी, कहा, लेकिन भाई ब्रैनम, वे किसी और तरह के कपड़ों को नहीं बनाते हैं। मैंने कहा, लेकिन वे अब भी कपड़े की सिलाई की मशीन को बनाते हैं और कपड़ा और सामग्री बनाते हैं। उनके पास इसके लिए कोई भी बहाना नहीं है। यह बिल्कुल सही बात है। Remember, someday you may be pure here to your husband, but you'll answer for adultery for it. Just as certainly, whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart. याद रखना, किसी दिन हो सकता है आप अपने पति के लिए यहाँ पर बहुत ही शुद्ध हो, लेकिन आपको व्यभिचार के लिए इसका उत्तर देना होगा। निश्चय ही इसी तरह जो कोई भी स्त्री की ओर बुरी दृष्टि से नजर करे, वो उसके साथ अपने हृदय में व्यभिचार कर चुका है। What's the matter with the Pentecostal women today is what I'm wondering. How you have got away from the old hewing line, how your mothers used to wear long hair, and today the Pentecost women paint up like a bunch of Mardi Gras and cut their hair and wear the little short clothes like that. आज पेंटिकॉस्टल महिलाओं के साथ क्या मामला है? यही है जो मैं सोच रहा हूँ। कैसे आप उन पुरानी रेखा से दूर हट रही हैं? किस तरह से तुम्हारी माताएं हमेशा ही लंबे बालों को रखती थी, और आज वे पेंटिकॉस्टल स्त्रियां कर्नियल समारोह के झुंड के जैसे अपने चेहरों पर लीपापोती करते हैं और अपने बालों को कटवाती हैं और इसी तरह के छोटे पुराने कपड़ों को पहनती हैं। Just like the rest of the week, get out and mow the yard in the afternoon when man's coming by. Do you realize, woman, that you're going to have to answer for committing adultery with them men? बिल्कुल वैसे ही जैसे वे दोपहर को चौराहों पर जाकर मुंह को बनाती हैं जब वे पुरुष वहां से निकलते रहते हैं। स्त्रियां, क्या तुम समझ रही हो?
आपको पुरुषों के साथ व्यभिचार करने के लिए जवाब देना होगा। You present yourself to them for that purpose. It's an evil spirit on the church and the people, and they don't know it. Blind and don't know it. The truth. तुम अपने आप को उनके सामने उस उद्देश्य के लिए पेश करती हो। यह कलीसिया के लिए और उन लोगों के लिए दुष्ट आत्मा है, और वह इसे नहीं जानते हैं, अंधे हैं और वे इसे नहीं जानते हैं। यही सच्चाई है। Maybe you might say, I haven't got a right to say that as an evangelist. Well, I have to follow the leading of the Holy Spirit. That's all I can say. If I meet your judgment, then I won't have to have your blood on my hands. हो सकता है आप शायद कहें, मुझे एक सुसमाचारक होने के नाते इसे कहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई का अनुकरण करना है। ऐसा ही है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। यदि मैं आपसे न्याय पर मिलूंगा, तब आपका लहू मेरे हाथों पर नहीं होगा। Get away from every bit of the ground that looks like Satan. Stay away from it. I don't care how many television stars, you're a television star. You're a daughter of God. हर एक उस स्थान के इंच से दूर हो जाओ जो शैतान के जैसा दिखाई देता है। उसे दूर रहो, दूर चले जाओ। मैं परवाह नहीं करता हूँ कितने लोग टेलीविजन के सितारे हैं। आप यहाँ पर टेलीविजन के सितारे नहीं हैं, आप परमेश्वर की एक कन्या हैं। Preaching the pastor's church the other morning about an old slave, time they're selling slaves long ago, and they used to come by and buy them on the auction. एक सुबह मैंने एक पास्टर की कलीसिया में प्रचार किया एक पुराने समय के गुलाम के बारे में। उस समय वे गुलामों को बेचा करते थे और वह वहां पर अक्सर जाकर और उन्हें नीलामी के द्वारा खरीदते थे। And the people they're weeping, crying because their homeland, they never go back no more, and they had to whip them, and they'd buy them just like you'd buy an automobile, just for anything, the prices, and selling them human beings. और वे लोग उनके जन्म भूमि के कारण रोते थे, चिल्लाते थे। वे अब कभी भी वापस नहीं जा सकते हैं, और वे उन्हें कोड़े मारते थे और वह उन्हें खरीदते थे, वैसे ही जैसे आप आज कोई मोटर गाड़ी खरीदते हैं या कोई भी चीज आप खरीदते हैं, उसका एक दाम होता है, और वे उन मनुष्य जाति को बेचते थे। And one day a buyer come by, a broker to a big plantation rather, and he said, "How many slaves you got for sale?" I said, "Well, I got some to swap." और एक दिन वहाँ एक खरीदार आता है, एक दलाल, और एक बड़े, मेरा मतलब बगीचे पर, और उसने कहा, तुम्हारे पास बेचने के लिए कितने गुलाम हैं? कहा, तो मेरे पास बेचने के लिए कुछ ही गुलाम हैं। They try to get them big, take them mothers, fathers. If the woman he had married was a little weakly woman, take these big healthy men and breed them like horses and animals. Never was right. God made man. Man made slaves. Not right to begin with. Never. God don't intend any man to be a slave. No, sir. And watch what taking place. वे उन्हें बड़ा करने की कोशिश करते थे, उनके माता पिता को लेते। यदि एक स्त्री ने उससे विवाह किया था, तो वह थोड़ी कमजोर स्त्री होती थी, और वो इस बड़े स्वस्थ पुरुष को लेकर और उनसे उत्पन्न करते, जैसे घोड़े और जानवर होते हैं, जो कभी भी सही नहीं था। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य ने गुलाम बनाए, और यह आरंभ से ही सही नहीं है, कभी भी नहीं। परमेश्वर का कोई इरादा नहीं है कि एक मनुष्य को गुलाम बनाए। नहीं श्रीमान, और नहीं। देखो किस बात ने जगह को ले लिया है। Then in the midst of all that, this fellow said, "Well, I'd like to buy some." He noticed one young fellow there that didn't have to whip him. His chin was up, head up, just like a real gentleman walking around. फिर इन सब के बीच में इस व्यक्ति ने कहा, तो मैं उनमें से कुछ को खरीदना चाहता हूँ। उसने एक जवान व्यक्ति की ओर ध्यान दिया। उन्होंने उसे कोड़े नहीं मारे थे, और उसकी ठोड़ी ऊपर की ओर उठी हुई थी, सर ऊपर था, बिल्कुल जैसे एक सच्चा सज्जन व्यक्ति होता है। यहाँ वहाँ चल रहा था। And that broker said, "I'd like to buy him." He said, "But he's not for sale." He said, "Well, why?" Said, "Is he the boss?" He said, "He's a slave." Well, said, "Why? Do you feed him better than you do the rest of them?" He said, "No, he eats out there in the galley with the rest of them. He's a slave." और उस दलाल ने कहा, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा, लेकिन यह बिकाऊ नहीं है। उसने कहा, तो ठीक है, क्यों? कहा, क्या वो मालिक है? उसने कहा, नहीं, यह एक गुलाम है। तो ठीक है। कहा, क्यों?
क्या तुम उसे बाकी लोगों से अच्छा भोजन खिलाते हो? उसने कहा, नहीं, वह वहां बरामदे में उन बाकी लोगों के साथ खाना खाता है। वह एक गुलाम है। So what makes him so much different than the rest of them? And the boss said, I wondered that myself for a long time. But one day I found out. Over in the homeland, his father is a king of the tribe. And though he's an alien away from home, he still knows he's a king's son and he conducts himself like one. कहा, क्या बात है जो उन बाकी लोगों से इसे अलग बनाती है? और मालिक ने कहा, मैं अपने आप में बहुत समय के लिए अचंभित रहा था, लेकिन एक दिन मैंने जान लिया, वहां उसकी जन्मभूमि पर उसका पिता एक जाति का राजा है, और वो भले ही अपने घर से दूर एक परदेसी है, वह अब भी जानता है कि वो एक राजा का बेटा है, और वह अपने आप में इसी तरह से बर्ताव करता है। If an African native could realize that his father is a king, and over here an alien in a strange land can still know that across the sea he's a king's son, how art women and men conduct themselves when you're sons and daughters of God? Act like it. Certainly conduct yourself, clean up yourselves, and act like sons and daughters of God. Wonder what a condition. यदि एक अफ्रीका का रहने वाला जान जाता है कि उसका पिता एक राजा है और वो यहाँ पर एक अनजान देश में परदेसी है, जो जान सकता है कि समुद्र के पार वह एक राजा का बेटा है, किस तरह से स्त्रियों और पुरुषों को अपने आप में बर्ताव करना चाहिए जब आप परमेश्वर के पुत्र और कन्या है, इसकी तरह व्यवहार करो। निश्चय ही अपना बर्ताव उस तरह से करो, अपने आप को साफ रखो और परमेश्वर के पुत्र की तरह और कन्या की तरह व्यवहार करो। मत सोचो कोई भी परिस्थिति होने दो।